स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। न्यू पब्लिक सर्विस में ऐसा क्या न्यू था जो उसको न्यू बोल दिया गया? न्यू पब्लिक सर्विस एक फिलॉसफी है एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया रूप देने की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया रूप देने की। इसकी जो शुरुआत होती है वो एक रिसर्च पेपर से होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू और जर्नल में, जो कि एक बहुत ही अक्लेम्ड जर्नल है। उसमें प्रोफेसर्स एक पब्लिकेशन करते हैं एंड देन इट कम्स इनटू form of the book also with the same name, the new public service, serving and not steering. The professors were Janet and Robert Denhart. So let us start the concept, what are the backgrounds of it, and let us see what was new in new public service. You all are welcome to the lecture. So as you see, there are two professors who have written something more important before new public service came into picture. So these were the proponent of new public management. Now new public management was coming out into the philosophy of public administration because the traditional public administration has failed people, failed government, failed the expectations of the citizens in meeting their day-to-day demand or making their life better. So now this was the response to that failure, and the response was include more and more market into. So this is management term, but it means include market. At the same time, have management orientation. What does it mean? It means like market, private sector driven aspects. So what would it be? Bring competition, contracting out, subcontracting, managed competition in between private and public sector. So Christopher Hood, professor, and Professor Michael Jackson. So he's not the Michael Jackson that we have of America into dance, but professors in Sydney University. So they were writing from Australia, and their prime aspect was that the administration has to take a lead, not into rowing, but rather steering. It means the main function of administration, public administration, should not be to do everything. Rather, now you have to be a catalyst. You have to steer the boat rather than rowing it. It means include market into it. This was they wrote a research paper, and in 1991 it came, and from the aspect of management, but the new public management was already there before 1991 also, before their publication also, right? So you have to remember this. And when we say it was before 1990s, so we can say what was happening during the tenure of Margaret Thatcher, Ronald Reagan in America, and Margaret Thatcher in UK was the precursor to what they were writing. There was a change into thinking of public administration into the state thinking, that public administration in itself is not complete. You need something to help it, and that help was from the market side. This is something that was happening before new public service came into picture. But this theory also was not able to have to give justice to all the section of society, because people realized, and realization was that market in itself is not complete. Market has its own faults. So what does it mean? Market has its own faults. It means market is not treating
equally. It means service is being provided, but there is no equity, equality. What are the value premises of Constitution? And also the have and have nots are not treated equally. At the same time, it was more of a customer type of a relation in between the state, in between state administration and customers. So customers definitely may change their service provider, and also customers are not in the sense very much involved like citizens do. So again, for the legitimacy of the government, for the diffusion of policies, and for the change, the state needs to have more social legitimacy. Now that can only be done when the state is taking its role seriously as somebody who is giving direction, also including people. So now next evolution came. What was that evolution? So new public service. So you see Janet and Robert Denhart. So in Public Administration Review, there was their paper. These Public Administration Review or American Public Administration Society, these are publication. These are all research paper, research journals where research papers or concept papers are published. So any new thing that comes into public administration, as a student, you should also know the new type of questions that we see in which are beyond our books that we study in public administration. They all come from these type of research journals that you have to understand. So new, जैसे आपने देखा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनेमिक है बहुत, तो उसमें 7-8 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो कहीं नहीं किसी बुक में नहीं है, वो ऐसे ही जगह से आते हैं. सो यहां पर इन्होंने 2000 में एक पब्लिकेशन की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में वो पब्लिकेशन आई. दे आर बोथ प्रोफेसर्स in University of Southern California in USA. Now they also published the new public service from the perspective of as a book also in 2011. Earlier it was just a research paper that was published. Now coming on to the aspect. So you see, initially I told, now their concept was that serving, not steering, and we have studied over here, it was their concept was not rowing but steering. So this was negated by these professors, right? So you have to understand that earlier the NPM was giving more power to the market forces, but these professors are taking the power back. So it is serving rather than just steering. So you have to serve. So what is the message to the bureaucracy? Message to the bureaucracy is serve people. Come out from market aspect. And you have larger duties, not just to be some agent in between the state and the market where things could be set up. You are not just a platform, but you have a very important role. So let us see, this is the background, and people were fed up with the market also, and because market in itself has its some problems, there could be market failure, then there is also regulatory aspect which leads to failure. If regulatory failure is there, market doesn't treat people equally, it is more a profit driven aspect. So now public administration batch is starting from 28th of June, and it would be a very comprehensive batch. The classes are from 1 to 4 p.m. on daily basis. We do a lot of answer writing practices, previous year questions. We also have test series in it, which are
total in number 12, and 8 are sectional test, and 12 are full length, right? So you have to remember this. Apart from that, SC लाइव कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही उचित दाम पे, डिस्काउंटेड रेट पे 15,999 पे ये आपको अवेल हो जाएगा, राइट? सो आई हैव सर्व्ड एज अ ब्यूरोक्रेट in Uttar Pradesh government in revenue department as a tehsildar gazetted officer, and I do bring very practical aspect from the ground and also theoretical aspect, interlinking them, making class holistics. So you all are welcome. Do remember 28th it's coming, and ensure your admission. Now coming on to back, so new public service. So it is a approach. I have already given you the background about the publications. That was important because definitely you have to understand from where it is coming, right? So it is an idea, intellectual idea. So new public service approach premise क्या है कि public management should be कि focus public management का होना चाहिए केवल और केवल मार्केट ड्रिवन नहीं, बल्कि कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी और पीपल, सिटीजन्स होने चाहिए. ये मुख्य लोग हैं जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, सिटीजन्स, राइट? और यहां पर प्राइमरी रोल जो है किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, प्राइमरी रोल क्या है? पब्लिक सर्वेंट का प्राइमरी रोल है कि हेल्प करना, आर्टिकुलेट करना. लोगों को नहीं पता है, लोगों को भी ये नहीं पता है कि वास्तव में उन्हें क्या चाहिए. सो जब केवल मार्केट को एक आगे करके गवर्नमेंट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो लोगों को भी नहीं पता है कि उनको वास्तव में क्या चाहिए. तो उनकी हेल्प करनी है आर्टिकुलेट करने में और उनके शेयर्ड इंटरेस्ट में, रादर टू कंट्रोल और स्टीर. इसका मतलब है केवल दिशा देने से काम नहीं चलेगा, आपकी जिम्मेदारी है. सो न्यू पब्लिक सर्विस, यू हैव मोर, नाउ यू हैव टू डू मोर. न्यू पब्लिक सर्विस, यू आर पब्लिक सर्वेंट, न्यू पब्लिक, यू हैव टू डू सर्विस. ये बहुत कॉन्ट्रास्ट है जो एनपीएम था, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, इसके जब बैकग्राउंड समझा रहा था मैं, राइट? ये तो आपको समझ में आ गया. और ये ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिफरेंट है. अब ये ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है? देखिए, ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हायरार्की ड्रिवन था, वहां पर आउटरीच इतनी ज्यादा नहीं थी. अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप इमेजिन करिए 1950, 1960 या 70 तक का, 70-80 में ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में भी हो गया. कैसा था अगर आप पुरानी मूवीज देख लें बॉलीवुड की? सो डीएम वाज अ फिगर जो फादरली फिगर था, माई बाप, राइट? बिकॉज वो हायरार्की ड्रिवन था, बहुत ज्यादा ई गवर्नेंस अप्रोच, या फिर हम बात करें गुड गवर्नेंस अप्रोच, ये नहीं आई थी. जैसे आजकल जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो लोगों से ज्यादा संवाद करते हैं, दे हैव बेटर कम्युनिकेशन. आप यूट्यूब पे भी देखते हैं कम्युनिकेशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. ये क्या है? ये चेंज है, फिलोसफिकल चेंज है, ये बिहेवियरल चेंज है जो आया है, ठीक है? तो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं था. मार्केट के आने से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बदला और पब्लिक सर्विस के आने से और भी बदला. अगर आप लगातार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है तो उसको ध्यान से देखें. जैसे 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आपकी सिविल सर्विसेज डे का आयोजन हो रहा था, वहां पर कहा दैट पब्लिक सर्वेंट शुड रीच आउट, शुड गो टू द पब्लिक, राइट? डोंट वेट दैट पब्लिक शुड कम टू यू, यू हैव टू रीच आउट. ये क्या है? ये है कि ट्रेडिशनल रोल से आगे आइए, पब्लिक सर्वेंट हैं आप, राइट? तो ये ध्यान रखना है आपको. कंट्रोल एंड हायरार्की टू प्लूरैलिटी और एंगेजमेंट की बात हुई, जो कि आपकी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग क्यों है न्यू पब्लिक सर्विस, ठीक है? तो प्लूरैलिटी का मतलब है कि अब केवल सरकार ही सब कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है. लोग अपने आप, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सिविक ग्रुप्स, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, साथ में पंचायत भी और साथ में ब्यूरोक्रेसी भी, सब मिलके काम कर रहे हैं. साथ में इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया भी, राइट? और इंगेजमेंट कर रहे हैं. इंगेजमेंट क्या है? लगातार टू वे प्रोसेस है, लगातार जुड़े हुए हैं, राइट? सो ये आपको ध्यान रखना है. न्यू पब्लिक सर्विस. नाउ
न्यू पब्लिक सर्विस के जो लेसन्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, वो क्या थे? ये थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और पब्लिक सर्वेंट को कैसा होना है। तो सर्व रादर देन स्टीर, यू हैव टू सर्व पीपल। योर रोल इज नॉट जस्ट टू बी अ प्लेटफॉर्म, रोल हैज ब्रॉडेंड, आपको लोगों तक रीच आउट करना है। सर्व देम। So what do we do when we serve? Serve food. आपने देखा होगा जब आप फूड देते हैं तो पूछते हैं ये लेंगे या ये लेंगे, ठीक है, रोटी लेंगे या पूड़ी लेंगे। मैं एक बहुत ही जर्नल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पर देखिए सर्व करना, तो व्यक्तियों को भी नहीं पता है कई बार, जैसे यहां पर एक पंचायत में एक समारोह हो रहा है, यहां पर इन लोगों को भी नहीं पता है उसके लिए क्या बढ़िया है, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इनकी भी बात माननी है, थोपना नहीं है, वो पुराना हो गया, और आर्टिकुलेट डिमांड को जगाने में, डिमांड को के रूप में कि क्या एक्चुअली सही रहेगा, उसमें लोगों के साथ संवाद करना है। और पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट द बाई प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है कि यू आर डूइंग योर सरकारी जॉब, ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट तो है ही लोगों का भला हो ही जाएगा। नो, इट इज द मेन एम, टू सर्व पीपल इज द मेन एम, इनकी लाइफ बेहतर बनाने का है, राइट? ओके, थिंक स्ट्रैटेजिकली, एक्ट डेमोक्रेटिकली। इसका मतलब यह है स्ट्रैटेजिक सोचो, अचीवमेंट क्या करना है लॉन्ग टर्म में, 10 साल में, 15 साल में, कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर यहां पर हमें डेमोक्रेटिकली एक्ट करना है। डेमोक्रेटिकली एक्ट का मतलब है कि विलेजेस में ग्राम सभा को इन्वॉल्व करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करना है, एनजीओज को इन्वॉल्व करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है, कम्युनिटी फोरम्स के थ्रू डायलॉग करना है, किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए। जैसे किसी गांव में अगर एक एक्स और वाई जाति के बीच और धर्म के बीच क्या है, फ्यूड है, लड़ाई है, सो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनको पकड़ के बंद कर देगा, इंडियन पीनल कोड की धारा लगा देगा। पर न्यू पब्लिक सर्विस क्या है, और न्यू पब्लिक सर्विस में एनजीओ को बुलाया जाएगा, कम्युनिटी लीडर्स को बुलाया जाएगा, प्रोफेसर्स को बुलाया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को बुलाया जाएगा, यहां तक कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके गुरुज को भी बुलाया जाएगा। अब ये क्या है, ये अपने आप में डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है। सो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, सर्व सिटीजन नॉट कस्टमर्स। तो यहां पर जो पॉपुलेशन है उसको सिटीजन्स के रूप में देखना है, और सिटीजन्स क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, उनके राइट्स ज्यादा होते हैं कस्टमर से। कस्टमर्स को एक बात आप सर्व नहीं करेंगे चलेगा, सिटीजन्स को एक उनका स्टेटस है। अगर हम थ्योरेटिकली भी जाएं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जैसे थ्योरी है बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट जस्ट that the customers can go anywhere. No, you have prime importance, you have prime duty to help out. That is why you are public servant, and it is new public service. So accountability isn't simple. What does it means? That traditional accountability was okay. आपके इनवर्ड अकाउंटेबिलिटी थी, आपके सीनियर ने आपको बता दिया, yes, your ACR annual confidential report is all good. आपको आपके यहाँ आपके प्रमाइसेस की जांच हो गई, आपके सीनियर्स आ गए, मुआयना कर लिया, इंस्पेक्शन हो गया, ऑल गुड, संसद में चीजें हो गई, ठीक है, वहां पर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऑल गुड। बट ओवर हियर अकाउंटेबिलिटी इजंट सिंपल, बिकॉज नाउ अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर्सपेक्टिव। मल्टीपल एक्टर्स हैं यहां पर, एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खुद ग्राम सभा जैसी जगह है, और पीपल तो हैं ही, और साथ में ह्यूमन राइट्स, साथ में इंटरनेशनल लॉज भी, नेचुरल जस्टिस तो है ही। तो अभी आपको क्या मिल रहा है यहां पर देखने को कि पहले की तरह नहीं है भाई, द अकाउंटेबिलिटी हैज नाउ मेनी मास्टर्स टू सर्व। तो आसान नहीं है, इसीलिए आप सर्वेंट हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा, राइट? वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स पीपल को वैल्यू करो, उनकी जो
उनकी जो समस्याएं हैं, देयर पेक्यूलियर प्रॉब्लम, देयर ओन प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व करो. दे हैव सम स्टेटस, दे आर सिटीजन्स like you, like public servant, they are citizen and you are servant, you are serving them, right? So value them. So it is not just old traditional public administration. You have some laws and you have some policy, you have just given them, आपने थोप दिया है और चले गए. उसके बाद नहीं, लगातार संवाद करना है. ठीक है. वैल्यू सिटीजनशिप, पब्लिक सर्विस अबव एंटरप्रेन्योरशिप. जो सिटीजनशिप है ये क्या है? ये एक ब्रॉडर टर्म है. ये केवल और केवल एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव में रिटर्न ऑन प्रॉफिट कितना है, मार्जिन्स कितने आ रहे हैं, इसमें नहीं है. एफिशिएंसी है या नहीं वो देखना है, पर केवल इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट में नहीं. यहां पर क्या है, ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप से सिटीजन की तरफ लाने की जरूरत है. तभी क्योंकि मार्केट फेलियर है, मार्केट फेलियर हुए हैं. मार्केट सबको सही नहीं जज कर पाता है. आप देखिए, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जाएं, सो 1970s 60s ये समय भी ऑयल प्राइसेस का क्राइसिस होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. 1990s में आप देखते हैं .com बबल आता है, या टाइगर इकोनॉमीज में क्या होता है, डाउनफॉल होता है. 2008 में क्या होता है, सब प्राइम क्राइसिस आता है. अभी भी क्या है, रीसेंट बैंकिंग फेलियर्स कितने हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं. यस बैंक का केस ले लीजिए आप, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, ILFS का केस ले लीजिए. सो व्हाट इट मींस, मार्केट इन इटसेल्फ नहीं कर सकता, और मार्केट इन इटसेल्फ सबको सर्व नहीं करता है. उसका क्लाइंटेल बेस है, उसको सर्व करता है. ठीक है. सो यू सी ओवर हियर, दिस इज व्हाट इट इज, कि एक इलेक्टिव व्यक्ति है और उसको पंचायत में जो वीडियो और पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको मालार्पण कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? यहां पर महिलाएं भी बैठी हैं. एटलीस्ट ये पार्टिसिपेटरी तो है, भले ही पुरुषों के साथ नहीं बैठी हैं, पर स्टिल दे आर देयर. पहले तो महिलाओं की बात, पहले ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, लोगों की बात, या फिर आपके NGOs की बात होती ही नहीं थी. सो दैट इज द चेंज, राइट. सो अगर कंपेयर करें ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू पब्लिक सर्विस को, तो देखते हैं कुछ एस्पेक्ट पे हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं. कॉन्सेप्ट, प्राइमरी थ्योरी क्या है, एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, नॉलेज ऑफ थ्योरी, क्या मेथड लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी से ड्रिवन है. ठीक है. थ्योरीज बन रही थी पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत उसमें योगदान था, वहां से आ रहा था. इकोनॉमिक थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई, मैनेज्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैनेज्ड कॉम्पिटिशन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एस्पेक्ट. डेमोक्रेटिक थ्योरी है, नॉलेज को भी लेके, ये भी है. नॉलेज भी कई तरीके की हो सकती है, जो आप पढ़ रहे हैं बुक्स में, या फिर जो ट्रेनिंग के थ्रू है. जरूरी नहीं है वही बेहतर नॉलेज हो. लोगों को पता है, जैसे लोगों को पता है पहाड़ों पे, लोगों को ये पता है कि जंगल कटेंगे तो दिक्कत होगी, राइट. सो आपने देखा है रैनी गांव चमोली में क्या शुरू होता है, चिपको आंदोलन शुरू होता है. लोगों को ज्यादा पता है, स्टेट को नहीं पता है. इसीलिए जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज भी है वो भी लोकल लेवल पे आके उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना है. ठीक है. और कॉन्सेप्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिटिकली डिफाइन था कि हमने राइट्स दे दिए हैं आपको, आर्टिकल 15 है, 16 है. ठीक है. यहां पर आ गया एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अब यहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, वो इंडिविजुअल जो है वो आपका मैथोलॉजिकल इंडिविजुअल है, वो समझता है सब कुछ, मार्केट ये सोचता है, और वो रैशनल चॉइस बनाता है, और उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा क्योंकि उसको पता है. बट सबको तो सर्व नहीं कर रहा है मार्केट. यहां पर क्या है, डायलॉग. तो सब कुछ लोगों को नहीं पता है, पर बहुत कुछ पता है, और आप क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं आ गया है, अब आपको सर्वेंट की तरह जाना है, राइट. ओके. सो यहां पर देखते हैं गवर्नमेंट का रोल क्या है, पब्लिक सर्वेंट्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं. रोल क्या है, रोइंग. गवर्नमेंट रो कर रही है, जैसे बोट को अकेले ढो रही है. यहां पर स्टीयरिंग कर रही है. मार्केट फोर्सेस आ जाओ, अब हम केवल स्टीयरिंग करेंगे. हमने क्या लगा लिया, मोटर लगा लिया. मोटर क्या था, मार्केट फोर्सेस. पर उससे भी काम नहीं चला क्योंकि मोटर था तो प्राइवेट ही. यहां पर सर्विंग करना है, नेगोशिएशन करना है. आओ चलो बताओ आप क्या चाहते हैं.
कि सर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो, जंगल ना कटें, क्या फिर कैसे उत्पादन हो, सर हम तो लोकल फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस हैं उनको उगाना चाहते हैं। ओके, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, चलिए हम एक आपके लिए सोसाइटी बना देते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर लेते हैं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देंगे। अब ये मिलजुल के बात हुई, ठीक है। अप्रोच टू अकाउंटेबिलिटी यहाँ हायरार्किकल अप्रोच है, हायरार्किकल ऊपर से नीचे चल रही है, मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, हर चीज प्रॉफिट के माध्यम पे। यहां अकाउंटेबिलिटी आसान नहीं है, जैसे मैंने बताया था, कम्युनिटी वैल्यूज, लॉ, पॉलिटिकल नॉर्म्स, प्रोफेशनल सिटीजन इंटरेस्ट सबको ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन लिमिटेड है, ज्यादा नहीं, ठीक है, जो पॉलिसी में लिखा है बस उतना कर दिया। यहां पर वाइड लैटिट्यूड, एंटरप्रेन्योरल गोल्स जो लिखा है वो तो है ही, साथ में रिटर्न भी दो, अपने डिपार्टमेंट को प्रॉफिटेबल कराओ। यहां पर क्या है, डिस्क्रिशन है बट कंस्ट्रेंड एंड अकाउंटेबल, क्योंकि आपको क्या करना है, मिलजुल के चलाना है। अब टू वे प्रोसेस ज्यादा है, आपको रीच आउट करना है पर लोगों की बात भी सुननी है और वहां पर लीडरशिप भी देनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगे आया है पर कोई चीज थोप नहीं रहा है, ये ध्यान रखना है। और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, टॉप डाउन अप्रोच थी, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन थी, हमें देखने को मिला न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में, ठीक है, पर एजेंसीज बनाई हुई थी। एजेंसीज का मतलब है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देख रही थी और मार्केट के हिसाब से काम कर रही थी। यहां पर क्या है, कोलैबोरेटिव है, आपको लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है। जैसे मैंने बता दिया, इतने सारे प्लूरैलिटी है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए न्यू पब्लिक सर्विस क्या है, बेटर अप्रोच है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। और आज जो चल रहा है समाज में उसके भी हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे सोशल ऑडिट ही है, अगर आप सोशल ऑडिट देख लें तो क्या है, ये भी तो लोगों के द्वारा और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही है। सोशल ऑडिट में क्या होता है, सोशल ऑडिट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ लोगों को, एक व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट लेवल से आता है जो कि रिसोर्स पर्सन होता है, और गांव के आसपास के संभ्रांत लोग या पढ़े लिखे लोगों को सोशल ऑडिट कमेटी में रखा जाता है। तो क्या है, पीपल का पार्टिसिपेशन है, ग्राम सभा ऐसी बॉडीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं, वहां पर बात हो रही है। सो ये आपको ध्यान रखना है और मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर हम क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कटिंग एज पे क्या है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, बिल्कुल नया। सो यहाँ पर हम केवल और केवल प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करते, आपकी क्वेरीज ही सॉल्व नहीं करते, साथ में रिसर्च आर्टिकल भी शेयर करते हैं, क्योंकि आपको लेटेस्ट चीज पता होनी चाहिए। साथ में EPW, फ्रंटलाइन, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी जहां पर भी अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती हैं उनको शेयर करना, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना, ये सब हमारा प्रयास रहता है। आपका स्वागत है पब्लिक एड बाय शेखर में, जुड़िए। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।